দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনাক যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আপ চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুদ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই মুহূৰ্তত লৈছে ডাঙৰ খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনা। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কো। আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে। আপ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পাছত লগোৱা হৈছে ইডি আৰু চিবিআই। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক পৰাজয় যে নিশ্চিত সেয়া বুজি উঠিছে মোদী চাহে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি বিজেপিলৈ ভয় নকৰো, মোদী চাহে যি কৰে কৰক, আমি মোদী চাহৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰো। এই মন্তব্য দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। আমি দিল্লীৰ জনতাৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি আহিছিলো আৰু কাম কৰি যাম। দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এনেধৰণে গৰজি উঠিল দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু এই মুহূৰ্তৰ পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনা। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ আন মন্ত্ৰী বিধায়কো। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে খুদ দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। যিহেতু দিল্লীৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰৈছে, তাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে দিল্লীৰ নিৰ্বাচনী ৰণ। দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিজেপিয়ে গম পাইছে, বুজি উঠিছে যে দিল্লীত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক পৰাজয় হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে এই পৰাজয়ৰ ভয় কৰি এতিয়া এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহে। এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে, কি কৈছে মন দি শুনক। दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से
दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। और अभी